Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a numerical on the MOS capacitors. So let's get started with that. So you can see a MOS capacitor with P substrate and strong inversion occurs when. मतलब आपके पास एक MOS capacitor है और वो MOS capacitor के अंदर जो substrate होगा वो आपका P substrate होंगे, P type material. तो उसके अंदर जो strong inversion occur होंगे कब होगा? Strong inversion occurs when आपके पास चारों ऑप्शन है कि surface potential is positive and equals to the twice of the Fermi potential. Option B पे surface potential is 0, surface potential is negative and equal to the Fermi level potential, and option D पे none of this. Now ये जो आपका strong inversion region होता है, ये strong inversion region कहाँ पे occur होता है, कौन से वाले ग्राफ पे? If you remember the CV characteristics, that means if you remember the CV characteristics, the CV यहाँ पे capacitor of the MOS capacitance और यहाँ पे मेरा V. तो CV characteristics for कौन से material? A MOS capacitor with P-type substrate. So that means a MOS capacitor with P substrate. ये मेरा MOS capacitor है रवि. So CV characteristics क्या होता है for the MOS capacitor with the P substrate? We know that MOS capacitor with P substrate का जो मेरा threshold voltage होते हैं VTH, that VTH is a positive voltage. We know that. So if VTH is a positive voltage, so what will be the CV characteristics? The CV characteristics looks like this. It looks like this. This is the CV characteristics where this region is called the accumulation region. ये मेरा accumulation region है और ये जो region है, ये वाला region यहां से लेकर यहां तक, this region is called the depletion region और ये पूरे region यहां से लेकर यहां तक, this is the inversion region. Inversion region. We know that. This is the CV characteristics where this voltage जहां पे minimum capacitance achieve होता है, जहां पे minimum capacitance achieve होगा, उसको हम लोग बोलते हैं the threshold voltage. So this is the C minimum and this point is the C maximum. So now this is the total CV characteristics of a MOS capacitor with P substrate, जहां पे मेरा threshold voltage positive है. Now ये जो inversion region है, this inversion region has two parts. First one, this region यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं moderate inversion. This is called moderate inversion and this one is called the strong inversion. So better we write moderate inversion. This one is strong inversion region. So this is the total characteristics of a capacitor versus the voltage of a MOS capacitor of a P substrate. Now आपका क्वेश्चन क्या है कि आपके पास जो MOS capacitor with P substrate है तो strong inversion occur होगा कब? मतलब ये वाला strong inversion कब ऑकर होंगे? तो सरफेस पोटेंशियल के लिए आपका ऑप्शन है, यहां पे देखिए सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए मुझे. अब देखो यहां पे जो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन क्या था? इफ यू रिमेंबर, सो नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस इन अ लिटिल डिटेल वे दैट आपके पास जो MOS कैपेसिटर है, तो उस MOS कैपेसिटर के अंदर आपका अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं यहां पे, if I want to draw the structure of a MOS capacitor with P-type substrate, then it will look like this. यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे आपका metal terminal. So this is the metal layer and this one is the oxide layer. So यहाँ पे मेरा ये वाला. So this is the metal, this is oxide, this is the semiconductor which is P-type. Now this will be one terminal, gate terminal, this is another substrate terminal. Now
इन दिस मॉस कैपेसिटर आपको अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहां पे मेरा गेट है और यहां पे मेरा सबस्ट्रेट टर्मिनल है, सबस्ट्रेट. सो ड्यूरिंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज व्हाट हैपेंस इन अ पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर, आपका अगर बैंड डायग्राम यहां पे ड्रॉ किया जाए तो यहां पे मेरा मेटल और ऑक्साइड का इंटरफेस, यहां पे ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस होंगे लाइक दिस. ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस? इट इज अ पी टाइप सबस्ट्रेट. पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर आप सोचिए ये जो रीजन है, सपोज दिस वन इज द इंटरफेस रीजन, ये मेरा इंटरफेस रीजन है जहां पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है. सो नाउ पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर if I want to draw the band diagram, so what will happen? So p type substrate के अंदर जो conduction band होंगे, suppose मेरा conduction band यहाँ पे है, suppose this is the conduction band of this p type substrate, so I am writing it as ECP. Similarly आपका valence band जो होते हैं, that valence band is this one, so this is the valence band of this p type substrate. इंटरफेस पे नहीं, bulk region पे, ये मेरा bulk, ये मेरा इंटरफेस. सो नाउ सिंस इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, वी नो दैट द सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होंगे, दैट फर्मी लेवल विल बी नियर टू दिस वैलेंस बैंड. सो सपोज दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर EFP. नाउ एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, यहां पे अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स आपको गेट पे पॉजिटिव और सबस्ट्रेट पे नेगेटिव वोल्टेज डालना चाहिए, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे बैंड बेंडिंग होगा आपका. सो एट थ्रेशोल्ड कंडीशन पे अब देखिए ये जो फर्मी लेवल है, दिस फर्मी लेवल आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई कैरियर मूवमेंट नहीं होगा, कैरियर इधर से नहीं जा सकते, यहाँ पे आपका इंसुलेटर है. सो दैट मीन्स ये मेरा फर्मी लेवल थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर कांस्टेंट होगा. अब ये ECP और EVP के बीच में क्या होता है? ECP और EVP के बीच में आपका एक इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है. सो दिस इज द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल. नाउ एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस सेमीकंडक्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉस कैपेसिटर, देन व्हाट विल हैपन? द वैलेंस बैंड विल बेंड एंड द कंडक्शन बैंड विल आल्सो बेंड. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस EFI will bend in this fashion. Similarly, आपका जो EVP है, ये भी आपका बेंड होगा सेम अमाउंट पे. Similarly, आपका ECP भी बेंड होते जाएंगे. So this will be the bending, this amount of bending. Now, आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन क्या था? थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब सच अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो आप यहां और ये दोनों टर्मिनल के बीच में डाले हैं. वी हैव गिवन सम वोल्टेज अक्रॉस दिस गेट एंड सबस्ट्रेट टर्मिनल, जहां पे गेट आपका पॉजिटिव टर्मिनल, सबस्ट्रेट आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां पे एक पोटेंशियल होगा. सो दैट पोटेंशियल, ऐसा एक पोटेंशियल वोल्टेज जहां पे आपका ये जो गैप है, ये वाला गैप और दिस गैप, ये वाला गैप, ये दोनों गैप, सपोज दिस इज द phi 1, दिस इज phi 2. थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब है कि ऐसा एक वोल्टेज आपको डालना है कि ये वाला phi 1 ये वाला phi 2 के साथ सेम होना चाहिए. उस वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज. सो नाउ ये जो वोल्टेज phi 1 है, ये क्या है? आपका सरफेस पोटेंशियल है. यहां पे भी आपका सरफेस पोटेंशियल है, देखिए phi 2 आपका सरफेस पोटेंशियल है. नाउ आप अगर ये वाले डायग्राम को अच्छी तरीके से देखेंगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन अगर आपको याद है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन होता है कि VTH इज द सच अमाउंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस दिस मॉस कैपेसिटर जब मेरा phi 1 विल बी इक्वल्स टू phi 2, मतलब phi 1 इज इक्वल्स टू phi 2, ये होना चाहिए, phi 1 और phi 2 होना चाहिए. तो एट दिस मोमेंट आपका सरफेस पोटेंशियल क्या होगा? एट दिस मोमेंट आपका जो सरफेस पोटेंशियल होंगे phi s,
सरफेस पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस पोटेंशियल? सरफेस पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि difference in the EFI position in the bulk region and at the interface. अब देखो बल्क रीजियन का मतलब क्या होता है? दिस वन इज द बल्क रीजियन. इंटरफेस मतलब क्या है? दिस इज द इंटरफेस. अब बल्क रीजियन के अंदर EFI का पोजीशन क्या है? बल्क रीजियन के अंदर EFI का पोजीशन इज दिस वन, और इंटरफेस में मेरा EFI का पोजीशन क्या है? ये वाला EFI पोजीशन. सो फाई एस का मतलब क्या होगा? फाई एस का मतलब है कि ये जो गैप यहां से लेकर यहां तक, ये जो एनर्जी गैप है, दिस इज द फाई एस. ये मेरा फाई एस है. सो वी कैन से दैट दिस गैप यहां से लेकर ये वाला गैप, दिस इज द फाई एस, बिकॉज यहां पे मेरा Fermi level of the intrinsic layer in the bulk is this one, and Fermi level of the intrinsic layer has bent down and at the surface it is here. So इसके बीच में जो गैप होंगे that is the phi s. Now this phi s is nothing but, अब देखो ये जो गैप है VTH, जब मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा तब ये वाले गैप और ये वाले गैप दोनों सेम है. So that means we can say that phi s is nothing but 2 of this gap, because twice of this gap, because ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों सेम है और टोटल मिलके मेरा phi s है. So we can say that phi s is equals to phi 1 plus phi 2. मैं बोल सकता हूं यहां से according to the definition of phi s. So अब ड्यू टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मैं कहां पे हूं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे, जहां पे phi 1 is equals to phi 2. So we can say twice of phi 1, और twice of phi 1 जो है ये वाला गैप, इसी को तो हम लोग बोलते हैं फर्मी पोटेंशियल. इसी को तो फर्मी पोटेंशियल ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है. सो दैट मीन्स वी कैन से दैट phi s is equals to 2 of phi fp. ये कब होगा? जब मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आया हुआ है, ये वाले वोल्टेज पे. सो दैट मीन्स एट दिस पॉइंट वी कैन से दैट phi s is equals to 2 of phi fp. Now what we need to find? We need to find the surface potential value. अब देखो स्ट्रॉन्ग इन्वर्शन कब होगा? स्ट्रॉन्ग इन्वर्शन ये वाले रीजियन पे हो रहा है, ये वाले रीजियन पे मेरा स्ट्रॉन्ग इन्वर्शन होगा. तो स्ट्रॉन्ग इन्वर्शन जब हो रहा है तो मेरा सरफेस पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होंगे? आपका सरफेस पोटेंशियल तो पॉजिटिव होगा. सो दैट मींस सरफेस पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ये हो सकता है. सरफेस पोटेंशियल 0, ये नहीं हो सकता है. सरफेस पोटेंशियल इज नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता है. नन ऑफ दिस तो नहीं होंगे. तो आपके पास ऑप्शन ए है. सो सरफेस पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो सर एंड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फर्मी पोटेंशियल. फर्मी पोटेंशियल पी टाइप का ये वाला phi fp, ट्वाइस ऑफ phi fp. दैट मींस आपका ऑप्शन ए इज द ट्रू ऑप्शन. नाउ ये तो था क्वेश्चन के पर्पस में डिस्कशन कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नाउ इन दिस क्वेश्चन आल्सो इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द प्लॉट और व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द phi s वर्सेस द वोल्टेज, phi s versus voltage का प्लॉट क्या होंगे? I am talking about some extra things. That means if I want to say that draw the graph between phi s and v. यहां पे क्या था? v वर्सेस c ग्राफ था, उससे मैं ये वाला कंक्लूजन निकाला. नाउ मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं कि इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ वर्सेस phi s, मतलब सरफेस पोटेंशियल वर्सेस द अप्लाइड वोल्टेज, तो क्या होगा? सो एट दैट केस व्हाट वी कैन डू, देखिए यहां पे मैं y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं. अब यहां पे मेरा v, तो यहां पे phi s. नाउ वी वांट टू ड्रॉ द सरफेस पोटेंशियल प्लॉट विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज. सो
जब मेरा एक्यूमुलेशन मोड पे चाहेंगे, एक्यूमुलेशन मोड, तो एक्यूमुलेशन मोड पे क्या होगा, ये जो मेरा EFI है, दिस EFI आपका अपवर्ड बेंडिंग होंगे, ये सारे का अपवर्ड बेंडिंग होगा। सो एट दैट मोमेंट आपका जो फाइस होंगे वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपका नेगेटिव हो रहा है। सो वोल्टेज जब नेगेटिव होंगे तो मेरा जो फाइस है, दैट फाइस विल इंक्रीज नेगेटिवली, आपका नेगेटिवली देखिए यहाँ पे आएंगे। सो एट दिस पॉइंट इट विल क्रॉस द वैल्यू एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्लॉट होंगे। सो ये जो वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द VTH, और इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल होगा phi s का वैल्यू, दैट इज 2 of phi FP. So the phi s value will always be positive for the MOS capacitor, P substrate MOS capacitor, after the threshold voltage. और after the threshold voltage आपका strong inversion आ रहा है। So strong inversion में आपका phi s हमेशा पॉजिटिव होंगे और 2 phi FP से तो इक्वल्स टू होंगे, 2 IFP के साथ इंक्रीज होंगे। सो दिस इज द पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल प्लॉट विथ रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज। जहां पे मेरा VTH है, यहाँ पे 2 phi FP है। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, जहां पे हमने बहुत डिटेल में, देखिए आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया और थ्रेशोल्ड पॉइंट पे क्या क्या सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू हो सकता है, प्रोबेबल वैल्यूज, उसके बारे में भी डिस्कशन किए। So hopefully you have enjoyed the video and thank you for watching the video.